جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بہت عرصہ گزرا، ملک سیستان پر ایک نہایت رحم دل اور نیک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نواز رکھا تھا جس کا نام شہزادہ خرم تھا۔ بادشاہ نے شہزادہ خرم کو دینی و تدریسی تعلیم کے علاوہ فنون جنگی سے بھی روشناس کروا دیا تھا۔ شہزادہ خرم بے حد بہادر سپاہی تھا۔ وہ ہر مصیبت کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتا۔ جب وہ جوان ہوا تو بادشاہ نے اس کی شادی ہمسایہ ملک کی شہزادی رخسانہ سے کر دی اور تخت و تاج شہزادہ خرم کے حوالے کر کے خود یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ شہزادہ خرم اور شہزادی رخسانہ عدل و انصاف سے ملک پر حکومت کرنے لگے۔ شہزادی رخسانہ اور شہزادے خرم کو شکار سے بھی بے حد لگاؤ تھا۔ وہ اکثر اپنا تخت اپنے وزیر کے حوالے کر کے دور دراز جنگلوں میں نکل جایا کرتے اور خوب شکار کھیلتے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ یہ دونوں اپنے ساتھ زیادہ لوگوں کو نہیں لے جاتے تھے، صرف 4-5 غلام ہوتے تھے جو ان کی خدمت پر مامور تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے، شہزادی اور شہزادہ دونوں شکار کی غرض سے ایک دور دراز کے ملک میں واقع جنگل کی جانب روانہ ہوئے۔ وہ اپنے ملازموں کے ہمراہ ایک نخلستان سے گزر رہے تھے کہ اچانک آسمان پر ایک بہت بڑا پرندہ نمودار ہوا اور تیزی کے ساتھ شہزادی رخسانہ پر جھپٹا۔ اس سے قبل شہزادہ خرم اور شہزادی رخسانہ کچھ سمجھتے۔ اس پرندے نے شہزادی رخسانہ کو اپنے پنجوں میں دبوچا اور تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اس اچانک آئی آفت سے شہزادی بکھلا گئی اور پرندے کے پنجوں میں بری طرح چیخنے لگی۔ شہزادہ خرم بھی یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے سوچا تیزی سے اس پرندے کے پیچھے گھوڑا دوڑائے، لیکن اچانک اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کمر میں کسی نے گرم سلاخ اتار دی ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کے ساتھ آنے والے ملازم کہکا لگا رہے تھے اور اس کی پشت پر ایک تیر پیوست تھا۔ آخری الفاظ اسے یہ سنائی دیے، شہزادہ صاحب، ہمیں حکم ملا تھا کہ جیسے ہی شہزادی صاحبہ کو کوئی حادثہ پیش آئے آپ کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہ الفاظ اس کے ملازموں میں سے ایک نے کہے تھے اور اس کے ساتھ ہی شہزادے خرم کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا اور وہ اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے گر گیا۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا تو خود کو گھاس پھوس کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں پایا۔ جھونپڑی میں پانی کے مٹکے اور سوائے ایک چٹائی کے اور کچھ بھی موجود نہ تھا۔ شہزادہ خرم کو اپنی کمر میں بے انتہا تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر درد کی شدت سے اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا اور سوچنے لگا یہ کون سی جگہ ہے اور اسے یہاں کون لایا۔ اسی وقت جھونپڑی کے دروازے کے پاس ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ شہزادے نے چونک کر دیکھا ایک 60-70 برس کی بڑھیا جو شکل و صورت سے انتہائی خوفناک لگ رہی تھی، وہ داخل ہوئی۔ اس کا سارا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر خون آلودہ تھی۔ بڑھیا شکل و صورت سے چڑیل لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں لکڑیوں کا بڑا سا گٹھا اٹھا رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں شہزادے کو اس بڑھیا سے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ کون ہو تم؟ شہزادے نے بڑھیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں بڑھیا نے ایک مکرو کہکا لگایا اور بولی، میں شیطان کی نانی ہوں۔ تم مجھے نخلستان میں زخمی حالت میں پڑے ہوئے ملے تھے۔ میں کئی روز سے بھوکی تھی، تمہیں دیکھ کر اپنی بھوک مٹانے کے لیے لے آئی۔ اب تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کھانے آئی ہوں۔ واہ، تمہارا خون اور تمہارا گوشت کس قدر لذیذ ہوگا۔ مجھے نوجوان کا خون بے حد پسند ہے۔ بڑھیا کی بات سن کر شہزادہ لرز اٹھا۔ اس کا جی چاہا کہ فوراً ہی اٹھ کر ایک ہی جھٹکے سے اس منوس بڑھیا کی گردن اس کے تن سے جدا کر دے، مگر وہ اپنے خیال کو عملی جامہ نہ پہنا سکا کیونکہ ایک تو وہ خود زخمی تھا اور دوسرا اس کے پاس تلوار بھی موجود نہ تھی۔ شاید منوس بڑھیا نے اس کی تلوار کہیں چھپا دی تھی۔ بڑھیا نے لکڑیوں کا گٹھا ایک طرف رکھا اور پاؤں گھسیٹتی ہوئی شہزادی کی جانب بڑھی۔ شہزادہ فوراً چکنا ہو گیا۔ اسے بڑھیا کی آنکھوں سے مسرت کی چمک دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ بڑھیا شہزادے کے قریب آئی اور اس نے آنکھیں بند کر کے کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ شہزادہ بری طرح بکھلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر بڑھیا نے جادو کر کے اسے بے ہوش کر دیا یا اسے بے بس کر دیا تو وہ بڑی آسانی سے اسے کھا جائے گی۔ اسے فوراً ہی کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ بڑھیا آنکھیں بند کر کے بڑی توجہ سے منتر بڑبڑا رہی تھی۔
اب تو شہزادے سے رہا نہ گیا۔ وہ فوراً کوہنیوں کے بل اٹھا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کی رگوں میں سرایت کر گئی، مگر وہ اس قدر آسانی سے اور خوفناک موت ہرگز قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے قریب بیٹھی بڑھیا کے بال پکڑ لیے اور اسے زوردار جھٹکا دیا کہ بڑھیا اپنے عمل سے باز آ جائے۔ اچانک جھٹکا لگنے سے بڑھیا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ شہزادے نے دیکھا اس کی آنکھیں انگارے کی مانند سرخ ہو رہی تھیں، مگر ساتھ ہی بڑھیا کا رنگ زرد ہو گیا۔ ارے چھوڑو میرے بال، چھوڑو! تمہیں کس نے بتا دیا کہ میری ساری طاقت میرے بالوں میں ہے؟ مجھے بے بس کرنے کا راز تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ درد کی وجہ سے شہزادے نے اپنے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ بڑھیا کی بات سن کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور اس کے بال اور زیادہ مضبوطی سے بھینچ لیے۔ اب تو بڑھیا بھی بری طرح چیخنے چلانے اور زور زور سے رونے لگی۔ کبھی وہ شہزادے کو غصے سے گالیاں بکنے لگتی اور کبھی اس کی منت سماجت کرنے لگتی، مگر شہزادے خرم نے اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر بڑھیا کے بال اس کے ہاتھ سے نکل گئے تو اس کی ساری طاقت واپس لوٹ آئے گی۔ وہ بے بسی کی موت مارا جائے گا۔ جب بڑھیا نے دیکھا کہ شہزادہ اس کی ایک نہیں سن رہا تو وہ اسے لالچ دینے لگی۔ ارے شہزادے، چھوڑ دو میرے بال، دیکھو میں تمہیں دنیا کا سب سے امیر آدمی بنا دوں گی، تمہیں بہت بڑے ملک کا بادشاہ بنا دوں گی، میں تمہاری غلام بن جاؤں گی، تم جو کہو گے میں اسے پورا کروں گی، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ میرے بال چھوڑ دو۔ کیا تم مجھے اس درد سے نجات دلا سکتی ہو؟ کچھ لمحے سوچ کر شہزادے نے اس سے پوچھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں پل بھر میں تمہیں تندرست کر سکتی ہوں۔ بڑھیا نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑنے پر تیار ہوں، مگر تم اپنے سب سے بڑے دیوتا کی قسم کھاؤ کہ تم مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی اور میرا کہا مانو گی۔ شہزادے کی بات سن کر بڑھیا چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی، مگر آخر اسے قسم کھانا ہی پڑی۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں سچائی کی جھلک دیکھ کر شہزادے نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ بڑھیا تیزی سے اچھل کر پیچھے ہٹ گئی اور شہزادے خرم کی جانب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کاش میں نے قسم نہ کھائی ہوتی تو تمہارا گوشت اور خون اطمینان سے بیٹھ کر کھاتی۔ بہرحال اب میں قسم ہی کھا چکی ہوں تو تم آنکھیں بند کر لو اور سیدھے لیٹ جاؤ، میں تمہیں ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں، لیکن خبردار چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو اپنی آنکھیں ہرگز مت کھولنا، ورنہ نتیجے کے تم خود ہی ذمہ دار ہوگے۔ بڑھیا نے تنبیہ کی اور شہزادے نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت اسے ایسا لگا جیسے اس کے زخم پر ہزاروں چیونٹیاں رینگ رہی ہوں اور اس کا گوشت نوچ رہی ہوں۔ شہزادے نے جلدی سے آنکھیں اور ہونٹ مضبوطی سے بھینچ لیے۔ اسے چند لمحوں تک برداشت کرنا پڑا، پھر آہستہ آہستہ اس کا درد کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا اور وہ آرام سے لیٹ گیا۔ اب آنکھیں کھولو نوجوان، اسے بڑھیا کی آواز سنائی دی اور شہزادے نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑا کہ نہ صرف اس کا درد ختم ہو چکا تھا بلکہ اس کے زخم بھی حیرت انگیز طور پر مدمل ہو گیا تھا۔ شہزادے نے بڑھیا چڑیل کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، پھر اسے اپنی بیوی شہزادی کا خیال آ گیا۔ اس نے بڑھیا سے اسی بارے میں سوال کیا تو بڑھیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھولیں تو وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ تم پریشان کیوں ہو گئی؟ شہزادی رخسانہ تو ٹھیک ہے نا؟ شہزادے نے اسے پریشان دیکھ کر بے چینی سے پوچھا۔ نہیں شہزادے، خیریت نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ تم جس وزیر پر اعتماد کرتے ہو اصل میں وہ ایک غدار اور خود غرض انسان ہے۔ وہ کافی عرصے سے ملک کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، مگر تمہارے باپ کے آگے اس کی ایک نہ چلی، چنانچہ وہ وقت کا انتظار کرتا رہا۔ اسی اثنا میں اس کا ایک آدمی دوست بن گیا جو ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ وزیر نے جادوگر کو ساری حقیقت بتائی تو اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ وزیر کی ضرور مدد کرے گا۔ اس جادوگر جس کا نام کرماچو ہے، اسے تمہاری بیوی بہت پسند آئی، اس لیے اس نے وزیر سے کہا وہ تمہاری بیوی سے شادی کرے گا اور تمہیں ختم کر دے گا۔ وزیر نے اس کی بات مان لی اور اس دن تم شکار کی غرض سے نکلے تو مکار وزیر نے اپنے آدمی تمہارے ساتھ بھیج دیے اور حکم دیا کہ جیسے ہی شہزادی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے یا وہ مر جائے یا کہیں گم ہو جائے تو تمہیں فوراً تیر مار کر قتل کر دیا جائے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔
रास्ते में जादूगर ने एक बहुत बड़े परिंदे का रूप धारा और शहजादी को उठाकर ले गया और वजीर के साथियों ने तुम्हें तीर मार दिया। बुढ़िया की बात सुनकर शहजादा बोला, अच्छा तो ये सारी कारस्तानी वजीर की है। शहजादे ने नफरत से होंठ भींच लिए, उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और कहने लगा, मैं उसे इस गद्दारी की ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। फिलहाल मैं पहले से नामराज जादूगर से निपट लूं जिसकी कैद में मेरी बीवी है। पहले मैं उसे छुड़वाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सिर्फ इतना बता दो वो बदबख्त रहता कहाँ है और उसने शहजादी को कहाँ रखा हुआ है। शहजादे की बात सुनकर बुढ़िया ने फिर आंखें मूंद ली और थोड़ी देर बाद कर आंखें खोलकर कहा, शहजादे, जादूगर चीन के शुमाल में मौजूद नीली पहाड़ियों के गार में रहता है। उसने तुम्हारी बीवी को शीशे के बुत में तब्दील करके उसे गार में रखा हुआ है और शहजादी असली हालत में सिर्फ उसी सूरत में आ सकती है जब तक उसके बुत पर उस जादूगर का खून न डाला जाए। और जादूगर को मारना इतना आसान नहीं, वो एक बहुत बड़ा जादूगर है। वो एक ही फूंक मारकर तुम्हें जलाकर राख कर सकता है। मेरा मशवरा मानो तो उसके मुकाबले से बाज रहो और अपनी शहजादी को भूल जाओ। बुढ़िया ने मशवरा देते हुए कहा और गुस्से की शिद्दत से शहजादे का रंग सुर्ख हो गया। मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ बुढ़िया, मैं हर सूरत में उस जादूगर को खत्म करूंगा और उसकी कैद से अपनी शहजादी को छुड़ा लाऊंगा। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो मत करो। अभी मेरे बाजुओं में इतना दम है कि मैं उस जैसे कई जादूगरों का मुकाबला कर सकता हूँ। शहजादे ने गुस्से से कहा और बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम उस जादूगर के मुकाबले की काबिलियत रखते हो। ये लो मेरे सर के बाल, इसे अपनी जेब में रख लो। किसी किस्म का कोई जादू तुम पर असर नहीं करेगा और अगर कभी मेरी जरूरत महसूस हो तो इन्हें धूप दिखा देना, मैं तुम्हारी मदद को आ जाऊंगी। बुढ़िया ने अपने चंद बाल नोच कर शहजादे को दे दिए और बोली, बार वाले दरख्त के साथ एक आला नस्ल का घोड़ा बंधा हुआ है, इस पर बैठकर नीली पहाड़ियों तक चले जाओ। घोड़ा तुम्हें जादूगर के गार तक पहुंचा देगा। और ये लो तुम्हारी तलवार। बुढ़िया ने चटाई के नीचे से तलवार निकालकर शहजादे को दे दी। शहजादे ने उसका शुक्रिया अदा किया और झोपड़ी से बाहर आ गया। वाकई बाहर एक दरख्त के साथ एक आला नस्ल का अरबी घोड़ा बंधा हुआ था। शहजादे ने घोड़े को खोला और उस पर बैठ गया और एक जानिब भागने लगा। उसकी रफ्तार तेज से तेज होती चली गई। घोड़ा तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था। 2 दिन और 2 रातें मुसलसल सफर करने के बाद आखिरकार शहजादा अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया। दूर से ही उसे नीली पहाड़ियों में मौजूद एक बहुत बड़ा गार का दहाना दिखाई दे गया। वो घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता गार के करीब ले आया और घोड़े से उतर गया। शहजादा समझ गया कि घोड़ा उसे मंजिल पर पहुंचाने के बाद वापस बुढ़िया के पास चला गया है। वो गार के दहाने की जानिब बढ़ने लगा। उसी वक्त इसने गार से सैकड़ों खौफनाक बलाएं निकलकर अपनी जानिब आती दिखाई दी। बलाएं बेहद खौफनाक थीं। उनके हाथों में तलवार और दूसरे हथियार भी मौजूद थे और वो देखते ही देखते शहजादे के करीब आकर उस पर पल पड़ी। शहजादा बुरी तरह घबरा गया, मगर ये देखकर इसने इत्मीनान का सांस लिया कि जो बला इस पर किसी हथियार से वार करती, एक शोला सा चमकता और वो बला फौरन जलकर भस्म हो जाती। शहजादा समझ गया ये सब कुछ बुढ़िया के दिए हुए बालों की बदौलत हो रहा था। फिर शहजादे ने मयान से अपनी तलवार निकाल ली और फुर्ती से बलाओं पर वार करने लगा। बलाएं कट कट कर गिरने लगीं। कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया। फिर वो गार की जानिब बढ़ा, मगर ठटक कर रुक गया क्योंकि जादूगर गार के बाहर खड़ा था। शहजादा तलवार हाथ में लहराते हुए बड़ी फुर्ती से पैंतरे बदलकर इस पर वार करने लगा। आखिरकार शहजादे ने जादूगर का सर तन से जुदा कर दिया और उसका खून एक बोतल में भर लिया। फिर गार के अंदर दाखिल होकर शीशे के बुत पर डाल दिया तो वो शीशे का मुजस्समा अपनी असली शक्ल में आ गया। शहजादा शहजादी को बिठाकर अपने घोड़े पर अपने मुल्क पहुंच गया और गद्दार वजीर को कत्ल करके बड़े मजे से जिंदगी गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, गुलचराग एक लक्कड़हारे का बेटा था। वो बहुत गरीब घराने में पैदा हुआ। घर में सिर्फ 3 अफराद थे, गुलचराग, उसका बाप और माँ। गुलचराग बचपन ही से बहुत खूबसूरत था
पास पड़ोस के लोग कहा करते थे कि हमीदा, तेरा बेटा तो गुदड़ी में लाल है। गरीब के घर इतना खूबसूरत बेटा पैदा हो जाना उन सब के लिए बड़ी हैरत की बात थी। लेकिन गुलचराग बचपन ही से अच्छी आदतों का मालिक था। वो बाप के साथ जंगल में भी चला जाता था। हालांकि अभी वो बहुत छोटा था, लेकिन जिस तरह भी हो सकता था वो अपने बाप का हाथ बटाता था। गुलचराग का बाप दरख्तों से लकड़ियां काटता था और गुलचराग जंगल में बिखरी हुई छोटी छोटी लकड़ियां तलाश करके उनका छोटा सा गट्ठड़ बनाता था और बाप के साथ ही शाम को घर वापस आ जाता। छोटी छोटी लकड़ियां घर में चलाने के काम आती थीं और बड़ी लकड़ियां बाप बस्ती में बेचकर घर का खर्चा चलाता था। अक्सर गुलचराग के माँ बाप जब अकेले बैठते तो इस तरह की बातें करते थे। माँ कहती कि हमारे पास तो बेटे के अच्छे कपड़े भी मौजूद नहीं हैं। वो तो शुक्र है खुदा का कि इसने कोई बेटी नहीं दी, वरना इसकी शादी ब्याह का मसला उठता। हम तो इसके लिए कुछ भी ना कर पाते। गुलचराग का बाप ठंडी सांस लेकर खामोश हो जाता था। फिर इस वक्त गुलचराग की उम्र तकरीबन 8 साल थी जब एक दिन वो जंगल में लकड़ियां जमा कर रहे थे कि उन्होंने एक बूढ़े फकीर को देखा जो लड़खड़ाता हुआ इस तरफ आ रहा था। गुलचराग के बाप ने कहा, अरे गुलचराग, ये फकीर तो बीमार लगता है। देखो तो कैसे लड़खड़ा कर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये गिर जाए। आओ जरा इसे करीब से देखें और इसकी मदद करें। दोनों बाप बेटे तेजी से आगे बढ़कर इस फकीर के पास पहुंच गए। गुलचराग के बाप ने गिरते हुए फकीर को हाथों में थामा और उसे गिरने से बचा लिया। गुलचराग भी साथ था। गुलचराग के बाप ने पूछा, बाबा जी, आप बीमार हैं? जवाब में फकीर ने उसे अजीब सी निगाहों से देखा और बोला, नहीं बेटा, मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि 3 दिन से भूखा हूँ और भूख की वजह से अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अरे अरे, आइए बाबा जी, जरा सी हिम्मत कीजिए, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है। दोनों बाप बेटा फकीर को सहारा देकर उस जगह ले गए जहाँ उनका खाना वगैरह रखा हुआ था। गुलचराग का बाप अपने और बेटे के लिए रोजाना सुबह को रोटियां बनवाकर ले आता था। थोड़ा बहुत सालन, गुड़ या चीनी वगैरह साथ लाते थे और इससे दोनों बाप बेटे मिलकर खाना खा लिया करते थे। भूखे फकीर को जमीन पर बिठाकर उसे खाना दे दिया गया। फकीर इतना भूखा था कि जरा सी देर में दोनों बाप बेटे का खाना चट कर गया और दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। बाबा जी, आप आराम से बैठो, हम लोग जरा अपना काम कर लें। ठीक है बेटा, जाओ अपना काम करो। और दोनों बाप बेटा एक बार फिर लकड़ियां वगैरह चुनने में मसरूफ हो गए। वो खामोशी से अपना काम कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फकीर को उठते हुए देखा। अब वो ठीक नजर आ रहा था। वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके पास पहुंचा। उसने मोहब्बत से इन दोनों को देखा और बोला, बेटा, ना मैं कोई दरवेश हूँ, ना कोई आलिम या वली कि तुम्हारे बारे में कुछ कह दूं, लेकिन एक बात कहूं तुझसे बेटा, इस बच्चे का नाम क्या है? गुलचराग। बिल्कुल ठीक नाम रखा तुमने। ये चिराग ही की तरह रोशन है और फूल की तरह नाजुक और शगुफ्ता है। बेटे, मैं इसके माथे पर जो चमक देख रहा हूँ वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि आखिर एक दिन इसकी तकदीर का सितारा ऐसा खुलेगा कि देखने वाले देखेंगे। ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और जो कोई भी किसी जरूरतमंद पर रहम खाता है, अल्लाह ताला उससे गाफिल नहीं होता और उसकी मदद जरूर करता है। तुम दोनों भी एक दिन आखिरकार ऐशो इशरत की मंजिलें तय करोगे और बहुत बुलंदी पर पहुंचोगे। शुक्रिया बाबा, आप उठ क्यों गए? आप हमारे साथ चलें, हम आपको अपने घर में रख लेंगे। अल्लाह के फजल और करम से जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपको भी आसानी से मिल सकता है। फकीर ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा और बोला, नहीं बेटे, बस ठीक है। ये कहकर फकीर चला गया। दोनों बाप बेटे भूखे काम करते रहे। उन्हें जरा भी अफसोस नहीं था कि उन्होंने अपना खाना बूढ़े फकीर को खिला दिया, बल्कि इस बात पर तो वो बहुत ज्यादा खुश थे कि उन्होंने किसी की मदद की। शाम को वो आदत के मुताबिक लकड़ियां वगैरह लेकर घर पहुंच गए और उन्होंने घर आने के बाद ही खाना खाया। कोई खास बात नहीं थी, किसी की मदद कर देना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसका ढोल पीटा जाता। अलबत्ता रात को गुलचराग के बाप ने अपनी बीवी को फकीर के बारे में तफसील बताई। खास तौर से फकीर ने गुलचराग के बारे में जो कुछ कहा था वो गुलचराग के बाप ने अपनी बीवी को बताया तो वो बहुत खुश हुई।
और बोली, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। अल्लाह जिसकी मदद करना चाहता है जरूर करता है। और फिर तुम देखो मेरा बेटा कितना खूबसूरत है। बचपन ही से सबके सब यही कहते हैं कि वो शहजादा है। और तुम देख लेना शहजादे को एक दिन बादशाहत मिल ही जाएगी। गुलचराग की माँ हंस देती थी और कहती थी, खुदा करे ऐसा ही हो। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। गुलचराग वाकई लंबा चौड़ा और खूबसूरत जवान निकला। बस्ती के सारे लोग उसे देखकर बूढ़े लकड़हारे को दुआएं देते थे और कहते थे कि तेरी तकदीर बहुत अच्छी है कि खुदा ने तुझे ऐसा खूबसूरत और होनहार बेटा दिया। गुलचराग अपने बाप को साथ जरूर ले जाता था, लेकिन अब वो अपने बाप को कोई काम करने नहीं देता था क्योंकि लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। और गुलचराग कहता था, बाबा जी आपने मेहनत मजदूरी करके मुझे जवान कर दिया। अगर अब भी आप मेहनत मजदूरी करते रहे तो लानत है मेरी जवानी पर। मैं जवान होकर क्या करूंगा? अरे नहीं बेटा, इंसान के हाथ पांव जब तक चलते रहते हैं वो अच्छा रहता है। मैं तो तेरे साथ आकर बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। अब जब तू मुझे उंगली पकड़कर यहाँ तक साथ लाता है तो मुझे तेरा बचपन याद आता है। उस वक्त मैं तुझे उंगली पकड़कर लाया करता था बेटा। वालिदैन इसीलिए औलाद की आरजू करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं कि उनका बुढ़ापे का सहारा हो। और खुदा ने तुझे मेरा बड़ा अच्छा सहारा बनाया है। ये तो मेरा फर्ज है बाबा। बहरहाल बाप बेटे में मोहब्बत की बातें होती रहती थीं। एक दिन गुलचराग बाजार से गुजर रहा था। बाजार के बड़े चौक पर कुछ आवारा लड़के बैठे हुए थे। ये लड़के हमेशा यहाँ नजर आते थे। उनमें से कुछ के साथ गुलचराग की सलाम दुआ भी थी। इस वक्त भी गुलचराग वहां से गुजर रहा था तो एक लड़के ने उसे आवाज दे ली, अरे भाई गुलचराग, अब तो हमारी तरफ से मुंह फेर कर निकल जाते हो। कभी कभी हमारे पास भी आकर बैठा करो। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मैं काम से जा रहा था, तुमने बुला लिया तो तुम्हारे पास आ गया। यार तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम्हारा बाप लकड़हारा है, हमारे साथ बैठा करो। देखो कैसी ऐश करते हैं हम लोग। पहली बात तो ये है कि मेरा बाप जो कुछ भी है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इज्जत से उसका नाम लो। मैंने तुम्हारे बारे में कभी कोई ऐसी बात नहीं कही। अरे तुम तो बुरा मान गए। हम भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं कह रहे। हम बस कह रहे थे कि कभी कभी हमारे पास भी आ जाया करो। उसी वक्त एक आवाज उनके कानों से टकराई, तकदीर का हाल मालूम कर लो, आने वाले वक्त के बारे में मालूम कर लो। लड़के इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। ये एक दरमियानी उम्र का दुबला पतला सा आदमी था जो बगल में एक बस्ता सा दबाए ये आवाजें लगाता चला जा रहा था। एक लड़के ने हंसकर कहा, चल भाई जरा हम अपनी तकदीर का हाल मालूम कर लें। उसके बाद उसने उस शख्स को आवाज दी और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इनके करीब आ गया। तकदीर का हाल बताओगे बाबा? जी बाबूजी, मैं तकदीर का हाल बताता हूँ। तुम्हें सबकी तकदीर का हाल कैसे मालूम हो जाता है? बस मेरा इल्म मुझे बता देता है। आप में से कौन अपने बारे में मालूम करना चाहता है? नहीं बाबा, हम तुम्हें खास सबक देना चाहते हैं। सबक? कैसा सबक? ये बात करते ही एक लड़के ने उस शख्स का गिरेबान पकड़ लिया, फिर अपने साथियों को इशारा किया और फिर सारे के सारे इस आदमी को मारने लगे। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या कसूर किया है, क्यों मार रहे हो मुझे? गुलचराग एकदम गुस्से में आ गया और बोला, हट जाओ पीछे सब लोग। यार जरा तुम देखो इसको, हमारी तकदीर का हाल बताने चला है और इसे अपनी तकदीर का हाल मालूम नहीं। ये नहीं मालूम था कि हम लोग इसे बुलाएंगे और बुलाकर मारेंगे, तो फिर ये हमारी तकदीर का हाल कैसे बता सकता है? तुम छोड़ दो इसे और पीछे हट जाओ। गुलचराग ने उन्हें कहा। गुलचराग, तुम हमसे झगड़ा मोल ले रहे हो। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे, वरना मैं तुम में से एक एक की खबर लूंगा। तो लो जरा खबर। सब लड़के लड़ने मरने पर आमादा नजर आने लगे। नजूमी बोला, नहीं भाई, तुम्हारी मेहरबानी, तुमने मुझे बचाया, खुदा तुम्हें इसका सिला देगा। गुलचराग के इन दोस्तों ने उसे खूनी निगाहों से देखते हुए कहा, भाई गुलचराग, तूने हमसे दुश्मनी मोल ले ली है। जो कुछ हम तेरे साथ करेंगे वो तू सोच भी नहीं सकता। मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, मैंने तुमसे कोई दुश्मनी मोल नहीं ली, पर इस बूढ़े बाबा को इस तरह मारना अच्छी बात नहीं थी। बस चल अपना काम कर।
गुल चिराग इस आदमी को लेकर चल पड़ा। इस बेचारे को काफी चोटें आई थी। गुल चिराग ने इससे अफसोसज़दा लहजे में कहा, मुझे अफसोस है बाबा, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, आप रख लीजिए, आपको जरूरत होगी। तेरी मेहरबानी बेटा, सच बात यह है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, आता जाता मुझे भी कुछ नहीं है, बस उल्टी सीधी बातें लोगों को बताकर थोड़े बहुत पैसे मुझे मिल जाते हैं, जिससे मैं अपने बच्चों का खर्च चलाता हूँ। अल्लाह ताला आपकी मदद करे बाबा, मैं खुद भी गरीब आदमी हूँ, बस ये पैसे रख लें। गुल चिराग ने जितने पैसे उसके पास थे उस आदमी को दे दिए और वो दुआएं देता हुआ चला गया। गुल चिराग की सारी जिंदगी इसी तरह के वाकयात से भरी हुई थी। जहां भी हो, जिस तरह भी हो सकता था, वो दूसरों की मदद किया करता था और उसके दिल में सिले का कोई लालच नहीं होता था। जिस रास्ते से गुल चिराग और उसका बाप जंगल में जाते थे वो कब्रिस्तान से होकर गुजरता था और जब भी वो कब्रिस्तान से गुजरते फातिहा पढ़कर जाते थे। उस दिन भी गुल चिराग एक कब्र के पास से गुजर रहा था कि उसने कब्र से हल्की हल्की आवाजें उभरती हुई सुनी। क्या हुआ? उसके बाप ने पूछा। बाबा जी, इस कब्र से आवाजें आ रही हैं। आवाजें? कैसी आवाजें? बाप ने कब्र से कान लगाए तो अंदर से आवाज आई, बचा लो, मुझे बचा लो, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे बचा लो। बाप बेटा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये आवाज गुल चिराग ने भी सुनी थी। अब क्या करें बाबा? कब्र खोदो, गुल चिराग के बाप ने कहा। क्या वाकई? हाँ हाँ बेटा, कब्र खोदो, गुल चिराग के बाप ने कहा और दोनों बाप बेटा मिलकर इस कब्र की खुदाई करने लगे। थोड़ी देर तक वो खुदाई करते रहे। इसके बाद पत्थर की सिलें हटाई तो नीचे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को लेटे हुए देखा। वो बहुत आला दर्जे के लिबास में मलबूस थी। उसके बाल सुनहरे थे और वो बहुत ही हसीन नजर आ रही थी। अरे ये तो जिंदा है, गुल चिराग के बाप ने कहा। हाँ बाबा, इसकी सांसें चल रही हैं, गालिबन ये हमें मदद के लिए पुकार रही थी, चलो निकालो इसे। उस दिन दोनों बाप बेटे ने जंगल से लकड़ियां काटने का इरादा तर्क कर दिया और नीम भी होश लड़की को उठाकर अपने घर ले आए। गुल चिराग की मां ने लड़की का चेहरा साफ किया जिस पर मिट्टी लगी हुई थी और वो बिल्कुल हसीन शहजादी जैसे निकल आई। थोड़ी देर के बाद लड़की की हालत बेहतर हो गई। बेटी तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं मुल्क रोशाम की शहजादी हूँ। शहजादी? हाँ शहजादी, मेरा नाम गुलनार है। मेरे बाप को मुझसे ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन मेरी माँ मर चुकी थी। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतीली माँ मुझसे बुरी तरह जलने लगी। वो तरह तरह से मेरे खिलाफ साजिशें करती थी, जबकि मेरा बाप मुझे बहुत ज्यादा चाहता था। फिर एक दिन जब मैं सैर के लिए निकली तो मेरी सौतीली माँ ने अपने आदमी मेरे पीछे लगा दिए। उन्होंने मुझे अगवा किया और मेरी गर्दन दबा दी। फिर ये समझकर कि मैं मर चुकी हूँ, वो मुझे यहाँ कब्रिस्तान में दफन कर गए। मैं नहीं जानती थी कि मैं कब्र के अंदर किस तरह जिंदा रही, लेकिन मैं जिंदा थी। और जब मुझे होश आया तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और आप लोगों ने मेरी जान बचा ली। उसने गुल चिराग की तरफ देखा और यूं लगा जैसे गुल चिराग उसे पहली ही नजर में पसंद आ गया हो। वो गर्दन झुकाकर खामोश हुई तो गुल चिराग के बाप ने कहा, बेटा गुल चिराग, तुम मुल्क रोशाम जाओ और जिस तरह भी हो सके शहजादी के बाप से मुलाकात करो। ठीक है बाबा, मैं तैयारी करता हूँ, आप जरा घर का ख्याल रखें। फिक्र मत करो बेटा। गुल चिराग मुल्क रोशाम की तरफ चल पड़ा। उधर रोशाम में कयामत मची हुई थी। शहजादी गुलनार का बाप बिस्तर से जा लगा था। उसे बेटी की मौत की इतला दे दी गई थी और ये बता दिया गया था कि उसे कोई दरिंदा उठाकर ले गया है। गुल चिराग कोशिश करता रहा कि किसी तरह रोशाम के बादशाह से मिले। फिर इसने अपना रूप बदला और जड़ी बूटियां लेकर वजीर के पास पहुंच गया और उससे कहा कि वो बादशाह का इलाज करना चाहता है। वजीर ने उससे कहा कि बादशाह का इलाज उसकी बेटी की तलाश में है। गुल चिराग बोला कि मैं बादशाह का इलाज करके उसे ठीक कर दूंगा। वजीर बहुत वफादार था। वो गुल चिराग को बादशाह के पास ले गया। तब गुल चिराग ने बादशाह के कान में पूरी कहानी दोहरा दी और बादशाह, जो कई दिन से बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उठकर बैठ गया। क्या तुम सच कहते हो नौजवान? जी बादशाह हुजूर,
शहजादी गुलनार जिंदा सलामत मेरे घर पर मौजूद है। आप अपने सिपाहियों को मेरे साथ भेज दें, मैं खुद चलता हूं तुम्हारे साथ। बादशाह ने कहा और वजीर को तैयारियां करने का हुक्म दिया। सब हैरान थे कि ये कैसा हकीम है कि इसने एक लम्हे में बादशाह को खड़ा कर दिया। बादशाह ने बाकायदा अपने आदमी तैयार किए और उसके बाद वो मंजिलें तय करता हुआ आखिरकार गुलचराग के घर पहुंच गया। वहां इसने अपनी बेटी को देखा। बेटी ने बाप को पूरा वाकया सुनाया तो बाप ने बेटी को गले लगा लिया और फिर गुलचराग की तरफ रुक करके बोला, बेटे तुम मेरे साथ चलो। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया जनाब, आप अपनी बेटी को ले जाएं, इसी में मेरी खुशी है। बादशाह अपनी बेटी को लेकर रोज शाम चला गया। सबसे पहले इसने अपनी दूसरी बीवी को गिरफ्तार कराकर कैद में डाल दिया। उधर शहजादी गुलनार हर वक्त गुलचराग को याद करती रहती थी। आखिरकार इसने अपने बाप से कह दिया कि वो गुलचराग से शादी करना चाहती है। बाप तो खुशी से इस बात के लिए पहले से ही तैयार था। सोच रहा था कि पहले जरा यहाँ के हालात से निमट ले, उसके बाद वहां जाकर उस नौजवान को गले लगा ले। और ऐसा ही हुआ। बादशाह गुलचराग के घर पहुंचा और उसके बाप से बातचीत करके कहा कि वो अपनी बेटी की शादी गुलचराग से करना चाहता है। गुलचराग का बाप तो खुशी से दीवाना हो गया। ऐसी धूमधाम से शादी हुई कि देखने वाले देखते रह गए। इस तरह गुलचराग को मुल्क रोशाम का बादशाह बनने का मौका मिल गया। शहजादी इससे बहुत मोहब्बत करती थी और कहती थी कि गुलचराग तुमने मेरी जान बचाई है, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हवाले है। आखिरकार गुलचराग ने अपनी बस्ती को बहुत शानदार बस्ती बना दिया और बादशाह से दरख्वास्त की कि वो हुकूमत करता रहे, वो अपनी बीवी के साथ यहीं रहेगा। और खुशहाल बस्ती गुलचराग को दुआएं देती रही कि उसकी वजह से बस्ती की तकदीर बदल गई थी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।